زندگی میں نا کامیاب ہونے کے لیے 3 راز میں آپ کو بتا رہی ہوں، چاہے آپ دنیا کے کسی شعبے میں بھی ہیں، کسی فیلڈ میں بھی ہیں نا، یہ 3 عادتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی ہیلپ کریں گی. ہیلپ نہیں، میں کہتی ہوں 100% یہ ورک کرتی ہیں، اور میری کامیابی کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ انہی عادتوں کا ہاتھ ہے اور انہی سیکرٹ کا ہاتھ ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی اپنی پورے دن مطلب صبح کی روٹین. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. اچھا، یہاں پر سب سے پہلے تو آپ میرے کپڑوں کو اگنور کیجیے گا کیونکہ یہ ڈسٹی علاقہ ہے، نیچے وغیرہ مٹی ہے، تو اس وجہ سے بلیک کپڑے جو ہے نا وہ بس منٹوں میں ہی خراب ہو جاتے ہیں، مطلب ڈسٹ وغیرہ جو ہے نا لگ جاتا ہے. تو یہ نہ کہیے گا کہ باجی نے میلے کپڑے پہنے ہوئے، ایسی بات نہیں ہے. تو بس یہ جو ہے مٹی کے علاقے کی وجہ سے اس طرح سے ہو گیا ہے. تو جو ہے نا صبح صبح پھر میں نے بچوں کو، آج سنڈے تھا تو بچے وغیرہ جو ہے نا پھر اٹھ کے اندر چلے گئے تھے سونے کے لیے، تو میں نے کہا چلے میں یہاں پر سارا کام کر دیتی. آپ کو دکھاؤں گی میرے کمرے میں نا ایک بہت ہی خطرناک چیز گھس گئی تھی، شاید آپ اس کو جانتے ہو. میں نے اس کو ریکارڈ کیا، آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی اسی ویڈیو میں. آج کی جو راز کی باتیں ہیں نا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ راز کی وہ باتیں ہیں شاید اس پہ کوئی بلیو کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر چیک کریں مٹی میرے فرش پہ، رات کو آندھی آئی تھی، ہلکی ہلکی ہوا بھی چلے نا، مٹی ریت کا علاقہ ہے تو اتنی اڑ کے پھر اندر گھس جاتی ہے، مطلب ایک چیز پر صبح اٹھ کے پھر وہی جدوجہد، وہ شروع سے شروع کر کے پھر وہی جھاڑوں، وہی پوچھی، وہی ڈسٹنگ، اتنی کوئی حال خراب ہو جاتا ہے نا. یقین مانے کہ بس یہ کہہ لیں کہ گرمیاں ایک قسم کی ہمارے لیے بہت امتحان لے کر آتی ہیں. امتحان اس لیے لے کر آتی ہیں، ہر روز جو ہے نا اتنا کام ہوتا ہے، اتنا کام، اوپر سے اتنی گرمی. اللہ پاک بس رحم کرے. اور پھر جو ہے نا گندے گھر میں بھی گزارا نہیں ہو سکتا، فرش بھی کچا سارا کچھ. اور یہاں پر جو ہے نا میرے بیٹے نے صبح سے مجھے تنگ کیا ہوا تھا، بیٹھا تھا، ابھی بھی آپ نے دیکھا رو رہا تھا کہ مجھے چیز چاہیے، میں نے دکان پہ جانا ہے. ساتھ میں ہی ایک چھوٹی سی شاپ ہے، ایک بہن نے گھر میں ہی سارا یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی، اس نے کہا تم چادر پہنو میرے ساتھ دکان پہ چلو، مجھے چیز ہی لے کر دو. محمد یونس نے اتنا یہ روئے جا رہا تھا. پھر میں نے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر جو ہے نا میں اس کو منا رہی تھی کہ تم چلے جاؤ، ساتھ ہی تو ہے یہ کہ میں نے کہا صبح صبح جاؤں گی کسی کے گھر، وہ ناشتہ نہ کر رہے ہوں، وہ سو نہ رہے ہوں، یہ وہ میرے مائنڈ میں بہت سارے خیال چل رہے تھے. لیکن میرے بیٹے نے بھی ضد کی ہوئی تھی کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. پتہ نہیں کیوں آج کل یہ بہت زیادہ ایک وہ گرمی کی وجہ سے شاید کہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ چڑچڑے پن کا شکار ہو گیا ہے، ورنہ یہ سا میرا بیٹا جو ہے نا وہ تھا نہیں. تو خیر میں اس کو یہاں پر بہلانے کے لیے باہر آ گئی تھی، تو میں نے پھر جو ہے نا اس کو منا لیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد چلیں گے، صبح صبح کا ٹائم ہے، وہ سو رہے ہوں گے یا پھر جو ہے نا وہ ناشتہ وغیرہ بنا رہے ہوں گے. اس نے کہا چل اماں ٹھیک ہے، یہ مجھے اماں کہتا ہے. تو بس پھر شکر ہے الحمدللہ یہ مان گیا اور اس کو جو ہے نا میں گھر لے آئی. اگر میں آپ کو اپنی کامیابی کا یا پھر جو جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا ان کا میں اگر آپ کو یہ بتاؤں نا کہ جو ہے نا کامیابی کی پہلی سیڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین. اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں، کام کرنے کے بعد بھی، کام کرنے سے پہلے بھی. میری بہت ساری بہنیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں جب کوئی بھی کام شروع کرتی ہیں یا کوئی کام کرتی ہیں. میں بھی پریشان ہوتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایک کوئی اس طرح کا پکا یقین ہے کہ مجھے ہوتا ہے، نہیں یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پہ وہ کہتے ہیں نا یقین بھی ہمیں اس وقت کرنا چاہیے، توکل بھی اس وقت کرنا چاہیے جب کام نہ بن رہے ہوں. پھر بنتے تو سب کے کام اگر بن جائیں تو پھر تو توکل سب کر ہی لیتے ہیں، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے جب آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہونا کہ یہ کام ہو جائے گا اور کام آپ کر لیں، تو اس کے بعد اللہ پہ اچھے کی یقین اور امید لگانا، یقین وہ اچھا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسا اس کو ملوں گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ اچھے کا گمان رکھیں اور پازیٹیو جو ہے نا آپ سوچیں. میں نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس طرح سے ہوتے ہیں جو کہ اللہ سے بالکل مایوس ہوتے ہیں. ایک وقت میرا بھی چل رہا تھا، میرا ٹائم پیریڈ میرا بھی تھا کہ میں بہت زیادہ مایوس تھی، پریشان تھی، لیکن اینڈ آف دی ڈے میں لوٹ کر اسی کے پاس ہی گئی. مجھے سنبھالا تو کس نے؟ میری رب کی ذات نے. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں جب کوئی کسی کا نہ ہونا تو سنبھالنے والی ذات اسی کی ہے. جس نے بنایا ہے، جس نے سنبھالا ہے، تو اس پہ یقین کرنا تو پھر بنتا ہے نا. اور یقین بھی ایسا کہ پھر ایسا یقین ہو کہ بس ہو جائے گا، میں نے جو کیا ہے نا یہ ضرور ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی، ڈگمگا سے جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، لیکن
यकीन उस पे बस बनाए रखना। ये मैं आप सबको कहती हूँ, ये कामयाबी की ना पहली जो है ना सीढ़ी है या राज है, ये वो राज है जो कोई कोई इसको तस्लीम करता है। बाकी हम सब दुनियादारी के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन इस राज को भी हमेशा अपने जो है ना पल्लू में बांध के रखना। तो फिर देखना इंशाल्लाह ताला आपके सारे काम जो है ना आपको बनते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये तवक्कुल और वो भी अल्लाह ताला की ज़ात पे, ये फिर आपको कभी भी नहीं गिरने देगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरा एक पक्का वो जिसे कहते हैं ईमान, और मुझे बहुत तवक्कुल है अपने रब की ज़ात पे माशाल्लाह। यहाँ पर देखें, ये चीज़ मेरे कमरे में घुस आई थी। हमारी ज़बान में तो इसको जाया कहते हैं आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं बताइएगा। अच्छा, मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही थी, मैं इससे डर रही थी, मेरे बच्चे कमरे में नहीं आ रहे थे और ये हमसे डर रहा था। मैंने कहा लो भाई, ये हमसे डर रहा है और हम इससे डर रहे हैं। पता नहीं, मैंने कहा कि ये क्या हमारे बारे में सोच रहा है और हम इसके बारे में ये सोच रहे हैं कहीं ये हमें काट ना ले। तो खैर ये जो है ना काफ़ी देर फिर मेरे कमरे में रहा, काफ़ी देर। मेरे बच्चों ने कहा इसको निकालो, मैंने कहा नहीं यार मैं इनको नहीं निकालती, बस ये खुद ही चला जाएगा। फिर खुद ही ये चला गया। अच्छा, मैं शादी से पहले तो बहुत डरती थी इतना, अब तो थोड़ी सी जो है ना वो जिसे कहते हैं ससुराल में आने के बाद इतने इतने चीज़ें फेस की हैं, तो अब जो है ना इन चीज़ों से डर नहीं लगता। ये छिपकलियाँ हो गई, ये इस तरह के मखलूक अगर देख लेना तो बस आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। खैर फिर बस यहाँ पर ये यहीं रहा, तो मैं जो है ना अपना काम मैंने कंटिन्यू किया, ये फिर उधर ही रहा। फिर मैंने जो है ना इसको निकाला नहीं, पता नहीं, मैं फिर नाश्ता बनाने लगी तो ये खुद ही चला गया। आप बताइएगा सही कमेंट्स में कि इसको क्या कहते हैं आपकी ज़ुबान में। अगर मैं आपको कामयाबी का दूसरा राज बताऊँ ना, वो ये है मुसलसल मेहनत, बिना थके मेहनत। कभी कभी हम थक जाते हैं, चले सही है, लेकिन हमें मेहनत ना करना, बस ये सोच के बैठे रहना कि जो है ना हमारा तो कोई काम नहीं बन रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मेरी बहनें यूट्यूब पर हैं, तो वो जो है ना कहती हैं कि वो परेशान हो जाती हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे या सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे। या कुछ मेरी बहनें जिन्होंने घर बैठ के कोई काम शुरू किया है, कोई बिज़नेस शुरू किया है, कोई छोटी मोटी जो है ना शॉप शुरू की है, या कोई भी छोटा मोटा हुनर है, सिलाई वगैरह का, कस्टमर वगैरह नहीं आते तो परेशान हो जाती हैं, मेहनत करना छोड़ देती हैं। मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो भी तब जब आप शुरू में शुरू करते हैं, आपको कोई नहीं जानता, आपका काम न्यू है, आप खुद जो है ना इसमें पहली मतलब फर्स्ट आपने एंट्री मारी है, तो यार कैसे 2-3 साल एटलीस्ट एक काम को आपको देने चाहिए, तब उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है। देखें, मेहनत किसी की राय गा नहीं जाती। हाँ, कभी कभी हम मेहनत जो है ना गलत डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। मतलब कि जिस तरह मुझे बोलने का शौक है, मैं यूट्यूब पर मुझे पता है मैं किस तरह की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा बना सकती हूँ। अगर मैं जो है ना किसी और टॉपिक पे बनाती हूँ, मुझे पता है मैं इस पे बात नहीं कर सकती। इसलिए काम वो करें जो आप जिसको कर देखा देखी में ना करें ना, फिर वो मेहनत आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि वो आप दिल से नहीं करेंगी। बस फिर जो है ना यहाँ पर ये कपड़े थे, मैंने कहा लगते हाथ तो इसको भी धो दूँ। अच्छा, पहले मैं जो है ना ये करती थी, कपड़ों को मैं शाम को मतलब वॉश करती थी, फिर जो है ना आंधियाँ चलती थी, सारे कपड़े गिर के डम डम हो जाते थे, मैं फिर उनको वॉश करती। अब जो है ना मैं सुबह के काम करने के बाद लगे हाथों ही अपने डेली के कपड़े जो मेरे बच्चों ने उतारे होते हैं या मैंने जो चेंज वगैरह किए होते हैं, तो बस डेली के जो है ना मैं इनको वॉश करके, फिर वो मेरे काम भी नहीं हुए होते, इतनी तेज़ धूप होती है कड़ाके की, वो सारे जो है ना सूख भी जाते हैं। तो सुबह के वक्त मौसम भी ठंडा होता है और मैंने कपड़े भी अपने हाथ पे वॉश करने होते हैं, तो मेरे लिए जो है ना वो ईजी रह जाता है। ठीक है, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि सिस्टर आप वॉशिंग मशीन ले लें। वॉशिंग मशीन मेरी है, मैंने अभी उसे ठीक कराना है। आपकी बहन बहुत आलसी है, बस अपने मामले में है वो इस तरह की, बस और कुछ मजबूरियां भी हैं जो बंदा बस इधर नहीं इतनी शेयर कर सकता। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जी बस आप ये दुआ करें आपकी बहन का छोटा सा आशियाना बन जाना। आपकी आप ही ने जो अपने घर को सजाना है, आपकी आप ही ने जो अपने घर के लिए चीज़ें लेनी है, इंशाल्लाह ताला आप भी मेरे साथ मिल के वो मंजर देखेंगे। इंशाल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे एक खूबसूरत सा, भले छोटा सा आशियाना दे, खूबसूरत सा, मेरे ख्वाबों जैसा। मुझे ये लगता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो है ना मैं अभी यंग हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा घर बन जाए, फिर मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो मैं अपने घर को कैसे सजाऊँगी, मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो फिर मैं काम कैसे करूँगी। फिर मैं सोचती हूँ खबरदार अगर मैंने ऐसा सोचा कि मैं बूढ़ी हो जाऊँगी, मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। खैर होती है ना कभी कभी ऐसी सोच भी होती है कि बस मैं कहती हूँ कि मेरा जल्दी से जो है ना घर बन जाए, मेरा अपना घर बन जाए जिस पे सिर्फ मेरी हुकूमत
हुकूमत हो, उसके एक एक कोने पे मेरी हुकूमत हो। और ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, ये मेरी मेरी देखने वाली इन स्क्रीन के पीछे जो मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहुत सारी बहनों की ये दिल की आवाज़ होगी, है कि नहीं है? बस बताना कमेंट। तो बस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें, क्योंकि होना तो वही है जो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्लान किया है। क्योंकि कुछ प्लान मुझे यही लगता है, कुछ हमारे प्लान होते हैं, कुछ रब के होते हैं। तो उसकी ज़ात पे राज़ी रहना सीखें, दुआएं करें, साथ साथ मेहनत करें। ये सारी चीज़ें मिलके आपको जो है ना आपकी मंजिल तक ले जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना, ये नहीं होता कि आप बस बैठे दुआएं करते रहें तो आप काम कोई ना करें और आप कहें कि ये ख्वाहिश या ये चीज़ पूरी हो जाए। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि हरकत में बरकत है, आप हरकत करेंगे तो ही बरकत उसमें आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मेरी नंद जो है ना, ये मिर्चें वगैरह जो है ना, इसको थोड़ा सा हम पतला कर रहे थे, यानी ये बहुत जो है ना एक दूसरे के ऊपर थी, तो हमने थोड़ा और कपड़ा वगैरह बिछा के इसको ना इधर में हमने कहा थोड़ा जल्दी सूख जाए। हमारे पूरे घर में पूरा दिन इन मिर्चों की इतनी वो सड़न सड़न सी बू मची रहती है, इतना कोई दिल पूरे घर में मिर्चों की वो जिसे कहते हैं। तो बस मेरी नंद यहाँ पर जो है ना ये मिर्च मुझे दिखा रही थी और कह रही थी कि कुछ जो है ना लोग हमारे हमसे या फिर हमारे काम से इस तरह से गल सड़ मर जाते हैं, और ये हकीकत बात है, हमारा उनसे कोई लेना देना भी नहीं होता। मैंने फिर जब उसने ये बात की ना, मैंने कहा अच्छा हाँ ये तो है, फिर मैंने गल सड़े मरे लोगों को हाथ में क्यों उठाया हुआ है, मैंने जल्दी से उसको फेंक दिया। खैर हम यहाँ पर दोनों जो है ना मजाक कर रहे थे, लेकिन ये रियलिटी है। बहुत सारे लोग जो है ना इन मिर्चों की तरह, ये भले मिर्चें उतनी तेज़ नहीं है, कुछ लोगों को हमारी तरक्की से इससे भी ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, और इतनी तेज़ मिर्चें लगती हैं, इतनी तेज़ मिर्चें लगती हैं, यकीन माने कि बस उसका जो धुआं होता है ना और मुझे लगता है कामयाबी का सबसे बड़ा राज, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे बहुत पसंद है, हार ना मानना। हार जाना तो फिर उठ जाना, फिर अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ जाना, हार कभी भी नहीं मानना। एक काम में मेरी प्यारी आप थोड़ी फेल हो गई हैं, पहली बार में आपने ट्राई किया, वो आपसे नहीं हुआ, ठीक है, हार मान के बैठ गई हैं, क्यों बैठ गई हैं? उठें, करें उस काम को फिर से करें, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। किसी काम में प्रोफेशनल बनने के लिए 2 से 3 बार एटलीस्ट अपने आप को जो है ना आपने देने ही देने हैं कि आप इस काम में एटलीस्ट अपना फिर से ट्राई दें और बेस्ट करें। जो पिछली बार गलती की थी इस बार ना करें, ठीक है, तो फिर गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते जाएं, हार नहीं माननी। कुछ भी हो जाए ना, जो इंसान हार मान जाता है ना, उसको कोई नहीं तरक्की दिला सकता, ना उसको कभी कामयाबी मिल सकती है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, ना ही जो है ना वो कभी कामयाब हो सकता है, क्योंकि उस इंसान ने खुद जो है ना हार मान ली होती है। दुनिया में किसी के पास कितना भी बड़ी, जिसके पास दौलत है, कुछ भी है, जो भी जितना भी कोई लेविश किस्म का है ना, तब वो भी आपको नहीं हरा सकते। दुनिया में कोई भी नहीं आपको हरा सकता जब तक आप खुद हार ना मान लें, जब तक आप ये तस्लीम ना कर लें कि ये मैं नहीं कर सकती। बहुत सारे काम हैं जिसमें मेरे बस की भी बात नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ ये मैं कर लूँगी। मेरा शौहर कहता है हर काम में तुम कहती हो कि मैं कर लूँगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी, जब मुझे अपने आप पे भरोसा है तो आप मुझे क्यों डिग्रेड करने के लिए बैठे होते हैं, कहते हैं कि नहीं करोगी। तो मैं कर लेती हूँ, मुझे खुद पे यकीन है। अब मुझसे जो है ना बहुत सारी सिस्टर भी मुझसे पूछती हैं कि आपको मोटिवेशन कहाँ से आती है, आपका सपोर्ट सिस्टम ये वो फलाना। मैं अपना सपोर्ट सिस्टम खुद हूँ, ठीक है, मैं अपनी मोटिवेशन खुद हूँ, मैं अपने लिए सारा कुछ खुद हूँ। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं हार नहीं मानती, कुछ भी हो जाए। मैं बड़ी डीठ किस्म की बंदी हूँ और मैं अपने आप को इस बात पे अप्रिशिएट करूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि अपनी तारीफ़ें कर रही हैं, तो भाई क्यों ना करूँ, मैं हूँ डीठ, मैं हार नहीं मानती। मैं किसी काम के पीछे लगूँ तो लगी रहती हूँ, करती रहती हूँ, अपना ट्राई बेस्ट देने की बहुत कोशिश करती हूँ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हो भी जाता है। नहीं होता, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ सीख लूँगी, कुछ ना कुछ जो है ना फिर किसी को बताने के काबिल बन जाऊँगी कि ये काम मैंने ट्राई किया था, नहीं हुआ था, आप ट्राई करें, या ये वो, फिर उस काम के बारे में सीख लूँगी। तो ये ना अपने अंदर ये एक चीज़ पैदा करें कि हारना नहीं है। दुनिया में कुछ भी हो जाए ना,
चाहे आपको लग भी रहा हो, आपको 100% उस बात की श्योरिटी हो कि आप इस काम में हारने वाले हैं, मज़ा तो फिर तब भी है कि जब फिर आप उस काम में हाथ डाल के उसको करना शुरू करें। तो एक बार मेरे कहने पे जब आपको लगे ना कि आप यहाँ पे हार जाएंगे, उसी काम को करना शुरू करें। देखना फिर आप में से डर ख़त्म होगा, आप में से वो एक अपने आप पर एतमाद पैदा होगा। खुद एतमादी के ऊपर मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, सो मैनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, मैंने उसमें से यही सीखा है। खुद एतमादी घूम घुमा के एक चीज़ पे आ जाती है कि अपने ऊपर यकीन करना है, ट्रस्ट करना है, अपने आप पर करना है सबसे पहले, ठीक है। भले आपका बैकग्राउंड्स में जितना भी सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हो, ये वो मैटर करता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैटर नहीं करता, उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने आप पर यकीन करती हैं, क्या आप अपने आप को उस काबिल समझती हैं मेरी बहन, ये ज़रूरी भी होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला आप मिलेंगे जी कल नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, कभी भी हार नहीं मानिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।